السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، سیرت خالد سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ویسے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی کے حالات اس مختصر سے وقت میں رکھنا کافی دشوار ہے۔ ان کی زندگی کے چند ایسے پہلو، چند ایسے کردار جو ہماری زندگی کے ایمان کو بڑھا سکتی ہیں، بس چنندہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک ایسے کمانڈر، ایک ایسے سپہ سالار، ایک ایسے جانباز سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے، ہار کا سامنا انہوں نے کبھی نہیں کیا، زندگی کے ہر پہلو میں فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنا دیا۔ خالد بن ولید یہ بڑے دلیر اور بڑے ہی جانباز اور بہت ہی بہادر سپاہی تھے۔ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے، اس سے پہلے اسلام کے خلاف جنگیں لڑنے والے۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام جب چند صحابہ کو احد کے پہاڑ پر بٹھائے تھے، آپ نے ان کو تاکید کی تھی کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے نہ اترنا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، وہ جگہ چھوڑ دیے۔ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر احد پہاڑ کے پیچھے سے صحابہ پر اٹیک کر دیے تھے۔ اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سپہ سالار ہیں۔ ان کے خاندان کا نام قبیلہ بنو مخزوم، خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی۔ ان کی کنیت ابو سلیمان تھی، سلیمان ان کا بیٹا جس کی جانب ان کی کنیت تھی۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کا ٹائٹل، لقب تھا۔ یہ خود اپنے آپ سے نہیں لیے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ٹائٹل دیا، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ہمارے نبی اپنی زبان سے دیے تھے، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے اللہ تعالیٰ سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ سیف اللہ بولے تو اللہ کی تلوار۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کی والدہ لبانہ، عبداللہ ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کی سگی بہن تھی، ہمشیرہ، سگی بہن۔
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिले नसब 7वीं पुश्त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जाकर मिलता है। और ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके अंदर इतनी बहादुरी, इतने कमालात, इतने सिफात इनके अंदर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी खूबियां जब सहाबा किराम बयान करते कि खालिद के अंदर बड़ी बहादुरी है, बड़ी जोश है, बड़ा बेहतरीन इंसान है, इसके अंदर ये सिफतें हैं, ये कमालात हैं, तो नबी हमेशा कहते थे इतनी खूबियों का मालिक बहुत जल्द इस्लाम लेकर आएगा, इस्लाम कबूल करेगा। जब इनके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, इनके अंदर इतनी खूबियां हैं, ऐसे बहादुर हैं, तो जरूर एक ना एक दिन ये इस्लाम कबूल करेंगे। नबी इनके बारे में तमन्ना रखते थे हमेशा। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक को हिदायत देकर इस्लाम को कुव्वत अता कर। अमर बिन हिशाम अबू जहल का नाम, या तो अमर बिन हिशाम को, या तो अबू जहल को, या तो उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की हिदायत दे अल्लाह, अल्लाह इस्लाम को तक़वियत दे अल्लाह। जैसे नबी दुआ किए थे वैसी तमन्ना खालिद बिन वलीद के लिए अल्लाह के नबी रखते थे, अल्लाह खालिद बिन वलीद को भी इस्लाम से सरफराज कर। आखिरकार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 8 हिजरी मक्का फतह होने से 4 महीने पहले 3 सहाबा, एक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमर बिन आस कौन? फातिह मिस्र, मिस्र फतह करने वाले, मिस्र के गवर्नर। उस्मान बिन तलहा कौन? जिनके खानदान में काबतुल्लाह की चाबियां चली आ रही थी वो। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उस्मान बिन तलहा और हजरत अमर इब्नुल आस, ये तीनों सहाबा सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं कलमा पढ़कर। इनके इस्लाम कबूल करने के बाद नबी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, सहाबा किराम से कहते हैं कि ए मेरे साथियों, मक्का ने अपने जिगर के गोशे को दामन इस्लाम में आज तुम्हारे दामन में डाल दिया है। इस्लाम के दामन में अपने जिगर के गोशे को उठाकर डाल दिया है। बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने पर। और जब कभी भी ये नबी के सामने आते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते तो बड़ी ताजीम की निगाह से इनको देखते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोश, एक वलवले के साथ हजरत खालिद बिन वलीद आते थे। और ये कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद जितने जंगों में नबी अलैहिस्सलाम की साथ में दिया, नबी के करीब भी जाता तो मेरे दिल में अजीब किस्म का रौब पैदा हो जाता, दबदबा, डर, खौफ। नबी के करीब गए तो एक अजीब किस्म का दिल में खौफ, डर, दबदबा। मैंने यकीन कर लिया कि ये मामूली हस्ती नहीं है, अल्लाह के पैगंबर हैं। और मुझे यकीन हो गया कि ये और इनके साथी पूरी दुनिया पर एक दिन गालिब आ जाएंगे, पूरी दुनिया पर ये गलबा पालेंगे। मेरे दिल में यकीन आ गया क्योंकि वो चीज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, अल्लाहु अकबर। अल्लामा इब्ने असाकिर एक बड़े मुअर्रिख गुजरे हैं। वो अपनी किताब इब्ने असाकिर के अंदर, तारीख इब्ने असाकिर के अंदर वो लिखते हैं, ये कौन है? 12 सदी के मुअर्रिख हैं। वो लिखते हैं कि एक इस्लाम के बहुत बड़े लश्कर के साथ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। कहां पर? ईसाइयों के किले को फतह करने के लिए भेजा गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और ईसाइयों के किले को मुहासरा कर लेते हैं।
मुहासरा करना मतलब उनको अपने घेरे में ले लेना, खिले में बंद लोगों को बाहर आने नहीं देना, बाहर के अंदर लोगों को अंदर जाने नहीं देना, मुहासरा कर लेना, इस्लाम पेश करना। या तो इस्लाम पेश करो, नहीं तो जिजिया दो, नहीं तो जंग करो। 3 चीजें। आपके लिए कोई जंग का पहलू नहीं, लेकिन इस मुल्क में रहना है, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। जबरदस्ती क्या भी नहीं कबूल कर रही, जिजिया दे के रह सकती, अपने कुफ्र पर कायम रहो, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ नहीं देना। मुहासरा कर लिए, कई दिन का मुहासरा। ईसाइयां परेशान, क्या करना भाई, क्या करना। आखिरकार उनमें से एक ज़हीन पादरी था उनका, उसका नाम अमर बिन अब्दुल मसीह, एक ज़हीन पादरी। उस पादरी को उन ईसाइयों ने चुनकर बातचीत करने के लिए खालिद बिन वलीद के पास भेजे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों के सिपह सालार थे, कमांडर थे। बातचीत करने के लिए भेजे। वो पादरी आता है, बात करते हुए कहता है, खालिद तुम एक काम करो, अगर तुम आखिर में बड़े बहादुर हो, तुम बड़े जंगजू हो और बड़े अजीम सिपह सालार हो, तो एक काम करो, ये आजू बाजू के इलाके में जितने भी हमारे जैसे किले हैं ईसाइयों के, उन किलों को फतह करो। अगर आपने दूसरे किलों को फतह कर लिया तो हम बगैर जंग के ये किला भी तुम्हारे हवाले कर देंगे। पहले जाओ, दूसरे किलों को फतह करके आओ। अपनी जहानत इस्तेमाल करने की कोशिश किया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या जवाब दिए? नहीं, सबसे पहले ये किला फतह करेंगे, बाद में दूसरे किले फतह करने के लिए जाएंगे। अब दूसरे किले भी फतह करना है ना, पहले ये शुरुआत इस किले से, बाद में दूसरे किले। अरे हटने का नाम नहीं ले रहे भाई, नो क्या करना है इनको। तो उसने एक जहर निकाला, जहर की बोतल निकाला, और वह पादरी कहता है कि अगर तुम ये मुहासरा खत्म नहीं करोगे, हमारे किले के ऊपर से तुम नहीं हटोगे, जहर मैं पी लूंगा, मर जाऊंगा, मेरा खून तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगा और पूरे ईसाई तुमसे मेरे खून का बदला का मुतालबा करेंगे। खैरियत इसी में तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना जहर खा ले, मर जाता हूं, तुम्हारा नाम लेको मर जाता हूं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, नामुमकिन, अल्लाह ताला तेरी मुकद्दर में अगर इस वक्त मौत नहीं लिखा है तो जहर पी को भी नहीं मर सकता। ये जहर पीने के नाटकांकर को हम ना डराने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह तेरी मुकद्दर में मौत नहीं लिखा तो जहर पिया तो भी नहीं मरता। ए नहीं भाई, मैं मरता हूं क्या? नहीं मरता, हरगिज नहीं मरता। अल्लाह जब तक मौत नहीं लाता कोई माई का लाल नहीं मरता। ऐसा तो तुम्हें पी को दिखाओ, ये जहर, तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया होगा, तुम्हें पी को दिखाओ। हजरत खालिद बिन वलीद बोले, ठीक है मैं पी लेता हूं। फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमर बिन अब्दुल मसीह उसके हाथ से वो जहर की बोतल लिए और ये दुआ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। शुरू उस अल्लाह के नाम से जो सारे जहान का मालिक है। ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, उसका नाम लेने के बाद कोई चीज जरर नहीं पहुंचा सकती, ना जमीन की ना आसमान की। वह समीउल अलीम, वो अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अल्लाह पे तवक्कुल रख के, अल्लाह पे भरोसा करके ये दुआ पढ़ के जहर की बोतल पी लिए। अब जैसे ही जहर की बोतल खालिद बिन वलीद पी लिए, खुश खुश हो गया पादरी। अरे मरता भाई ने, थोड़ी देर में मर जाता, मेरा प्लान काम आया, अब मर जाता। अब इनका सिपह सालार नहीं रहेगा तो सारे मुसलमान भाग जाएंगे, मुहासरा खत्म हो जाएगा, हम तो आराम से बगैर जंग के हम जीत जाएंगे। खुश खुश हो गया। इतना खतरनाक था वो जहर, इतना खतरनाक था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस जहर पीने का वाकया बेशुमार किताबों के अंदर है, लेकिन ये गलती आज आप में से कोई नहीं करना। चलो ये दुआ पढ़ेंगे जहर पी लेंगे, नहीं, ये उनका एक जज्बाती ईमानी था, उन्होंने पिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुआ पढ़ते जाओ आप जहर पीते जाओ, नहीं, आपको ये हुक्म नहीं है। वो उस वक्त का वैसा लम्हा था, पी लिए जहर, दुआ पढ़े, पी लिए। थोड़ी देर में पसीने से शराबूर होने लगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। जैसे जैसे पसीना निकलने लगा, ये पादरी कहता है
कि खालिद तुमने इतना खतरनाक जहर पिया है, थोड़ी देर में तुम मर जाओगे और ये मुहासरा खत्म, सब मुसलमान भाग जाएंगे। खालिद बिन वलीद बोले अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरी मौत यहां मुकद्दर में नहीं लिखा है तो यह जहर भी कुछ काम नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद वो पसीना ऑटोमेटिक बदन में सूख गया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत नॉर्मल हो गई, बिल्कुल अटेंशन होकर खड़े हो गए। खालिद बिन वलीद का अटेंशन होकर खड़े होना, बातचीत करना, वो पादरी इतना डर गया, इतना हैरान हो गया और डर के मारे भाग गया अंदर और अपने किले में जाकर लोगों को बोलता है, कौन? अमर बिन अब्दुल मसीह, वो पादरी, कि लोगों मैं ऐसे इंसान को देखकर आ रहा हूं जो मरना नहीं जानता, मारना जानता है। मरना नहीं जानता, मारना जानता है। उसने जो जहर पिया वो इतना पॉइजन, इतना खतरनाक जहर आलूद वो जहर है, अगर वो जहर एक बड़े पानी के डोल में वो जहर की बाटल डालकर वो पानी को पूरे किले में जितने 100,000 लोग हम लोग हैं, एक एक घूंट भी पी लें, जितने किले में हम लोग हैं ये पूरे किले के लोग मर जाएंगे। बड़े पानी के डोल में वो जहर की बाटल मिक्स कर को एक एक घूंट पी लिए तो ये जितने भी 1000 लोग किले में हैं पूरे के पूरे मर जाएंगे। ऐसा जहर खालिद पिए, लेकिन खालिद को पसीना आए, वो मरना तो दूर की बात, बेहोश तक नहीं हुए, बेहोश तक नहीं हुए। मैं उनके ईमान के सामने हैरान हूं, बिल्कुल हैरान हूं कि दुनिया में नामुमकिन के इतना जहर कोई पिए और ना मरे। लोगों मेरी बात मानो, खैरियत से ये किला उनके हवाले कर दो, वरना इस किले की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, तुम्हारी तिक्का बोटी करके रख देंगे। बगैर जंग के सारे ईसाई डर कर आकर वो किला मुसलमानों के हवाले कर दी। यह था खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बे ईमान। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी जंगों में जाते तो डायरेक्ट लड़ने का ऑफर उनके सामने नहीं रखते, पहले इस्लाम पेश करते, अमनो अमान की बात करते। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, कौन है ये? तफसीर इब्ने कसीर लिखने वाले अल्लामा इब्ने कसीर, अल बिदाया व निहाया एक अजीम किताब है। इस किताब के 7वें जिल्द 16 नंबर के सफे पर, अल बिदाया व निहा के 7वें जिल्द 16 नंबर सफे पर अल्लामा इब्ने कसीर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक कैफियत बयान करते हैं। लिखते हैं वो कि एक मर्तबा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे यरमुक के मौके पर, जंगे यरमुक के मौके पर रूमियों के सामने सफारा होकर खड़े हो गए। उधर रूमी है, इधर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रूमियों का जो सिपह सालार था उसका नाम था जुर्जा, जीम रे जुर, जीम है जा, जुर्जा। जंग शुरू होने से पहले सिपह सालारों से गुफ्तगू करते थे। जुर्जा कहता है, खालिद मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम मुसलमानों के कमांडर हो, तुम मुसलमानों के सिपह सालार हो, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोल सकते हो तुम, क्या बात करना है? जुर्जा बोलो, सुन रहा हूं मैं। जुर्जा कहता है, खालिद सच्चा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार वाला इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुझे यकीन है अगर तुम सच्चे हो, तुम ईमान वाले हो, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी धोखा किसी को नहीं दोगे। हाँ, हम किसी को धोखा नहीं देते। खालिद मैं चंद सवालात करना चाहता हूं। क्या है? अल्लाह ताला ने, तुम्हारे अल्लाह ताला ने आसमान से कोई तलवार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देकर नाजिल नहीं किया, फिर तुम्हारा टाइटल सैफुल्लाह कैसे पड़ गया? तुम्हारा लक़ब सैफुल्लाह कैसे पड़ गया? क्या अल्लाह ताला जिब्राइल को देकर कोई तलवार भेजा है क्या आसमान से? नहीं ना, फिर तुम सैफुल्लाह कैसे हो गए? अल्लाह की तलवार कैसे हो गए? इस सवाल के जवाब में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि ऐ खालिद, तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। यह मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह कहता है। सुना दो मेरे खालिद को कि वो अल्लाह की
मुनाफिकों पर, काफिरों पर सौंप के अल्लाह ताला रखा है। जब भी खालिद की तलवार उठेगी, मुशरिकीन मुनाफिक खालिद की तलवार के सामने नहीं बच पाएंगे। ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। मेरे नबी ने कहा, तब से मेरा टाइटल सैफुल्लाह पड़ा। पहले सवाल का जवाब। अच्छा खालिद, मुझे ये बताओ, तुम किस चीज की दावत लेकर, दावत का मिशन लेकर तुम अपने फौज को लेकर निकले हो? दुनिया फतह करने के लिए, इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए किस चीज की दावत लेकर तुम निकले हो? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम एक अल्लाह की दावत का पैगाम लेके निकले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का पैगाम लेके निकले हैं। लोगों को अमन, सुकून और इस्लाम का पैगाम, तौहीद और रिसालत की दावत का, दीन का पैगाम देने के लिए, लोगों को इस्लाम में अमन से बुलाने के लिए हम निकले हैं। अच्छा खालिद, मुझे यह बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारे इस्लाम की दावत को कबूल ना करे, इनकार कर दे, तो तुम क्या करोगे? खालिद बिन वलीद कहते हैं, अगर कोई हमारी इस्लाम की दावत पर लब्बैक नहीं कहता, ठुकराता है हमारी इस्लाम की दावत को, तो हम उनसे जिजिया मांगते हैं। इस ममलिकत में रहना हो, अगर इस मुल्क में आपको रहना है, तो यहां टैक्स देकर रहना पड़ेगा। हम उनसे जबरदस्ती नहीं करते कि तुम कलमा पढ़ो, तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह के नबी की नबूवत को मानो। हम जबरदस्ती नहीं करते। मानना है मानो, नहीं मानना है टैक्स दो। अरे खालिद, मुझे यह बताओ, अगर कोई तुम्हारे इस्लाम को भी एक्सेप्ट ना करे, तुम्हारे टैक्स देने को भी कबूल ना करे, इनकार कर दे, मैं इस्लाम भी कबूल करता नहीं, मैं टैक्स भी देता नहीं, क्या करते हैं तुम्हें? ऐसा करे तो खालिद बिन वलीद कहते हैं, जुर्जा, अगर कोई टैक्स भी देने से इनकार कर दे, तो हम उसको जंग के लिए ललकारते हैं, या तो इस्लाम या तो टैक्स, दो भी नहीं तो फिर जंग के लिए हम ललकारते हैं। अच्छा अरे खालिद, मुझे यह बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करके तुम्हारे पास आता है, तो तुम उसे कौन सा मुकाम देते हो? क्या है तुम्हारे इस्लाम के अंदर? नया इस्लाम कबूल कर आने वाले के लिए कौन सी पोजीशन है, क्या उसका मुकाम है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, इस्लाम में किसी को बड़ा, किसी को छोटे की फौकियत नहीं है। हमारे पास चाहे बादशाह रहंदे, फकीर रहंदे, बड़े से बड़ा मालदार रहंदे, भिखारी रहंदे, मालिक रहंदे, गुलाम रहंदे, सब नमाजों में कीच एक सफ में खड़ने वाले। उन्हें बड़ा का तो ऊपर नहीं, छोटा का तो नीचे नहीं, उन्हें मालदार का तो आगे नहीं, इन्हें नौकर का तो पीछे नहीं, सब एक सफ में। किसी को बड़ा मुकाम नहीं, किसी को छोटा मुकाम नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में सबसे इज्जत वाला वो है जो जिसका तकवा सबसे ज्यादा है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। हमारे यहाँ इस्लाम कबूल कर आने के बाद इन्हें कौन से खानदान वाला, इसका क्या मुकाम, कौन से कितना मालदारी ने, कौन सी हैसियत, क्या भी नहीं। सब एक सफ में, कौन अमीर कौन गरीब, कौन बादशाह कौन फकीर, सब एक सफ में। कोई हैसियत नहीं इस्लाम में, बड़ा छोटा आगे पीछे नहीं, अल्लाह के पास है वो सब। ये जानना था। जुर्जा ने कहा, ऐ खालिद, अभी का अभी मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे नहीं पता था इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। रूमियों का सिपह सालार, रूमियों का, ईसाइयों का सिपह सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुफ्तगू करते हुए कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, आता है सफ में मुसलमानों के आ जाता है, और हजरत खालिद बिन वलीद अरकाने इस्लाम उसे बताते हैं, तौहीद क्या, नमाज क्या, रोजा क्या, अरकान इस्लाम उसे सिखाते, इस्लाम की बुनियादी बातें उसे बताते हैं। फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। कौन? जुर्जा। उसके बाद उसी जंग में जो आए थे रूमियों के हिमायत, ईसाइयों की हिमायत में मुसलमानों से लड़ने, जुर्जा कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों के सफ में खड़े होकर अब रूमियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जंग करते हैं। और उसी जंग में कई जख्मे खाने के बाद, कई एक को वासिले जहन्नम करने के बाद खुद शहीद हो जाते हैं, कई एक को मारते हैं वो, फिर खुद जख्मी होकर उसी जंग में फौत हो जाते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक अहम पहलू क्या है? जंगे मूता, जिसे जंगे मौता भी कहते हैं। जंगे मूता
मीमोते है। सही बुखारी आप उठाएंगे, उसमें एक चैप्टर है किताबुल मगाजी। किताबुल मगाजी जंगों वाली, जंगो जिदाल वाली चैप्टर, उसमें जंगे मोता के बारे में एक चैप्टर है, बाबू गजवतिल मोता, जंगे मोता कैसी लड़ी गई। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस जंगे मोता को भेजने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हैं कि मुसलमानों सुनो, इस जंग के जो सिपह सालार होंगे वो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सबसे पहले कमांडर होंगे मुसलमानों के। अगर वो मुसलमानों के कमांडर होते हुए, जंग लड़ते हुए अगर वो शहीद हो गए, मुसलमानों का झंडा दूसरे नंबर पर संभालने वाले हजरत जाफर बिन अबी तालिब होंगे। जाफर बिन अबी तालिब को तुम कमांडर बना लेना, वो मुसलमानों के अजीम सिपह सालार होंगे दूसरे नंबर पर, वो इस्लाम का आलम संभालेंगे। अगर वो भी लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाएं तो जंगे मौता के तीसरे सिपह सालार होंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम अपना सिपह सालार मुंतखब कर लेना। और सुनो, अगर वो भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए, तो ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनों में से किसी एक को अपना सिपह सालार बना लेना। ये वसीयत किए, ये नसीहत किए, रवाना किए। अब गए, जंगे मूता चल रही है। नबी की वसीयत के मुताबिक सबसे पहले सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन साबित थोड़ी देर में शहीद कर दिए गए। शहीद होने के बाद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम का झंडा ले लिए। मुसलमानों के अजीम सिपह सालार खुद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। नबी की वसीयत थी ना, नबी का हुक्म था ना, वो मुसलमानों की क़ियादत करते हुए, उनको नियाबत करते हुए जंग लड़ते गए, यहां तक कि थोड़ी देर के बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब को भी शहीद कर दिया गया। नबी की वसीयत क्या थी? तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम अपना सिपह सालार बना लेना। उधर एक के बाद दीगरे शहीद हो रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के जरिए जंगे मूता में चलने वाले मैटर को यहां मदीने के अंदर नबी को सब सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी, अब जंग की सिचुएशन ऐसी चल रही है, अब जंग सिचुएशन ये पोजीशन पर, अब जंग में ज़ैद बिन साबित शहीद हो गए, अब जंग में जाफर बिन अबी तालिब संभाले हैं सिपह सालारी, अब जंग चल रही है, अब थोड़ी देर में जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। अल्लाह के नबी, अब फिर उसके बाद आपकी वसीयत के मुताबिक तीसरे सिपह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाले, वो संभाल रहे हैं, वो जंग चल रही है, अब थोड़ी देर में वो भी शहीद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से सुनकर मदीने में पूरी हाल हवाल बयान कर रहे हैं। सहाबा इकराम, सुनो, अब ऐसा चल रहा, अब ऐसा चल रहा। मेरे भाइयों, जब तीसरे सिपह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए गए, अब मुसलमान बौखला गए। रूमियों ने कब्जा जमा लिया मुसलमानों पर, 3 अजीम सिपह सालार शहीद कर दिए गए। सारे रूमी मुसलमानों पर कब्जा जमा लिए। करीब था कि मुसलमान मैदान छोड़कर भाग जाए। कौन सिपह सालार है इनका, कौन कमांडर है इनका? अचानक एक सहाबी ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो तुम अपने में से किसी को कमांडर बना लेना, अपने में से किसी को सिपह सालार बना लेना। मेरे दिल में यह तमन्ना आती है कि अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद को मैं मुसलमानों के कमांडर के लिए नाम पेश करता हूं। मेरी तमन्ना है कि वो मुसलमानों के कमांडर बने। इनके एक जुमले पर सारे मुसलमान एक होकर कहने लगे, खालिद बिन वलीद हमारे कमांडर रहेंगे, खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाया जाएगा। अब उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम का झंडा संभालते, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। उसके बाद जो पुरजोश तकरीर मुसलमानों के सामने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं, जो जज्बा शहादत और जो जज्बा ईमान इनके दिलों में जो बढ़ाते हैं, जिस अंदाज से मुसलमान रूमियों पे टूट पड़ते हैं, अल्लाहु अकबर। आपको शायद मालूम नहीं होगा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे मूता के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक के बाद दीगरे 9 तलवारें टूट गई।
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से 9 तलवारों को एक जंग में खालिद बिन वलीद ने तोड़ दिया। जब एक तलवार टूटती थी दूसरी तलवार लेते थे, दूसरी टूटती थी तीसरी लेते थे। अल्लाह अकबर। यहां नबी मदीने में वो अहवाल बयान कर रहे हैं। ज़ैद बिन साबित, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये तीनों शहीद कर दिए गए। अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना सिपह सालार बना लिया। अब उसके बाद जो जंग चल रही है, एक के बाद दिगरे 9 तलवारें टूट गई। खुद खालिद बयान करते हैं कि मेरे हाथ में एक यमन की छोटी तलवार, जिसका दस्ता लंबापन में छोटा था, चौड़ेपन में ज्यादा था, वो एक छोटी यमनी तलवार लास्ट में बची थी मेरे हाथ में। उसके बाद रूमियों के पराखचे उड़ा दिए मुसलमान। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलवार के सामने कोई नहीं टिका, सब भागने लग गए। जंग मूता इतने अजीम शान से वो जंग अल्लाह ने फतह अता किया। उसके बाद बड़ी शान और शौकत से मदीना लौटे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस दिन अल्लाह के नबी खुश होकर उनको गले लगाकर कहते हैं कि तुम वाकई में अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। उसके बाद फतेह मक्का सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह होने का मौका था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद को यह पैगाम दिए थे कि कैसे मक्का फतह करना है, किस प्लान से मक्का में हमको दाखिल होना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबीले बनु सलीम, कबीले बनु खुज़ैमा, कबीले बनु गफ्फार, इन 3 कबीलों की क़ियादत करते हुए मक्के में तुमको आना है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने तो ऐ खालिद, अल्लाह की तलवार का जौहर उसे बताना, रत्ती भी रहम नहीं करना, गर्दन उड़ा देना। और याद रखो, जंग करने में पहल ना करना। अगर सामने वाला मारने के लिए आ रहा तो तुम्हारी तलवार के करतब दिखाना, वरना किसी को जंग के लिए नहीं उभारना, किसी को जंग में पहल नहीं करना। हम चाहते हैं अमन और अमान के साथ, अमनो सुकून के साथ मक्का फतह कर लें, किसी का खून ना बहे। मक्के की हुर्मत, उस अजीम शहर मक्कतुल मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम की हुर्मत को हम पामाल किए बिना, किसी का खून बहाए बिना, अमन सुकून के साथ हम मक्का फतह करना चाहते हैं। जब मदीने से कई हजार सहाबा का लश्कर लेकर हजरत खालिद बिन वलीद मक्का पहुंचे, ये कबीले बनु सलीम, कबीले बनु गफ्फार और कबीले बनु खुज़ैमा की नियाबत करते हुए जब आए, रास्ते में 12 नालायक ऐसे मिले जो खुद मुज़ाहिमत करके मारना चाहते थे। एक झटके में खालिद बिन वलीद ने उन 12 को अपनी तलवार से निकाल दिया, कत्ल कर दिया। फिर मदीने को, मक्के को आए। मक्के में बड़े शान और शौकत के साथ दाखिल हुए और मक्का फतह हो गया। सारे दुश्मन सामने थे, उसके बावजूद उनको अमन दिया गया, उनको माफ कर दिया गया। दुश्मन सलेंडर होकर सामने खड़े थे, तब भी नबी ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। अगर नबी चाहते एक एक सहाबी को, एक एक आदमी, एक दुश्मन को देकर उनकी गर्दनें उड़ाने लगा सकते थे। नबी ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। मक्का फतह होने में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक अजीम किरदार, बहुत बड़ा किरदार। उसके बाद सन 8 हिजरी ही में, अब मक्का फतह होकर सिर्फ 5 दिन हुआ है, ओनली 5 डेज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 सहाबा को खालिद बिन वलीद को दिए, बोले कि तुम यहां से सीधा मुकाम नखला चले जाओ। अरे खालिद, मुकाम नखला चले जाओ। बाज रिवायत में इस नाम को नुखला कहा जाता है, नून खा लाम है, मुकाम नखला। ये क्या, कौन सा मुकाम था? यहां मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा बुत था। इस बुत का नाम उज्जा, जैसे लात, मनात, हुबल, उज्जा, जो इनके बड़े बड़े बुत थे, उनमें से उज्जा मुकाम नखला में एक लंबी मूर्ति, बड़ा मूर्ति बना कर रखे थे उज्जा का। इनका भगवान, मुसीबतों को टालने वाला, आने वाली बलाओं से रोकने वाला, हर मुश्किलों से मक्के वालों को बचाने वाला, ऐसा अकीदा था मुशरिकीन का। उज्जा बुत के ताल्लुक से मक्का फतह हुआ। मक्के के काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत जो रखे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा से उनके गर्दनों में एक एक बुत को खींचते गए, नीचे गिराते गए। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ते गए, जाअल
बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही है। ये पढ़ते हुए 360 बुतों को नेस्त व नाबूद कर दिए। उसके बाद काबतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा को दे दी। ऐ उस्मान, मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह मुझे हुक्म देता है कि तुम अमानतें उन्हीं के हवाले करो जिनका वो हक है। ऐ उस्मान, ये तुम्हारे खानदान में चली आ रही है, ये चाबियां तुम्हारा हक है, मेरे अल्लाह का ऐलान है, भला मैं कैसे रख सकता? ये इज्जत, ये शर्फ, ये शान तुम्हारी है, ये लो। अल्लाह अकबर। आज तक उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान में वो चाबियां चली आ रही हैं, काबतुल्लाह की चाबियां आज तक, कयामत की सुबह तक उन्हीं के खानदान में चलेगी। ये उनके खानदान का शर्फ है, ये उनकी खानदान का एहतराम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होकर सिर्फ 5 दिन हुआ, अल्लाह के नबी 30 सहाबा का लश्कर देकर हजरत खालिद बिन वलीद को कहते हैं, अरे खालिद, यहां से सीधा निकलो तुम मुकाम नखला में और उज़्ज़ा नामी बुत के परागचे उड़ा दो, टुकड़े टुकड़े करके आ जाओ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 सहाबा को लिए सीधा गए मुकाम नखला। वहां बड़े बड़े पुजारियां बैठी उनके, बोले हट जाओ, अब तुम्हारे बुत के टुकड़े टुकड़े करको जमीन लेवल करना है। हे उज़्ज़ा भाई, इन्हें बुरी निगाह से देखे तो भी हम क्या चले आती, उसे छुए तो जान चले आती तुम्हारी, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। अरे क्या होता, मैं देख ले तो हट भाई, तू हट भाई, तेरे बुत को तेरे सामने कुचल कुचल को पवान के नीचे डाल, खुंदल खुंदल सभी मिलिया मेट कर, क्या करता देख ली। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बुत को तोड़े और उस बुत के टुकड़े टुकड़े करके जमीन के लेवल कर दिए। देखने वाले डर रहे, हैरान हो जा रही, हम क्या फाड़ ले रही, अब जलजला आ जाता, अब आसमान से बिजलियां टूट पड़ती, क्या क्या की होता, अब वो हक जाता, ये हक जाता। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3, कहीं का भी नहीं हो रहा। बुत को तोड़ को बुकनी बूटा करके पूरा नीचे डाले खुंदल रही, कहीं का भी नहीं हुआ। अब इनको यकीन हो गया, अरे नहीं रे, कोसे की मूर्ति को रख ले, हमें इतने दिन सिराम फोड़ ले बैठे, सब गलत रहेगा। तो वो जत्ते पूजा करने वाले थे सब कलमा पढ़ को इस्लाम कबूल करे। कहीं कहते तो उनके सिर में एक भेजे में बिठा डाले थे, इन्हें हमारा बड़ा भगवान, इन्हें ये इसे क्या तो भी देखे हम क्यों चले आते, तुम बुरी निगाह डाले तो भी हम क्या चले। ऐसा दिल में डर बिठाए, दाल कुचल को पूरा पाउडर कर नीचे पावा में दाल खुंद ले, पूरा डर चले गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उसके फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मुकाम हुनैन के लिए, जंगे हुनैन, ग़ज़वा हुनैन, 1000 का लश्कर देकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सन 8 हिजरी में मक्का फतह होने के बाद कबीले बनु हवाज़िन हुनैन के मुकाम पर रहते थे। वो लोग इस्लाम के खिलाफ क्या है साजिशें करते थे। अब या तो उनको इस्लाम की दावत देना, नहीं तो टैक्स, नहीं तो जंग, चलो निकलेंगे। 1000 का लश्कर देकर आगे भेजे खालिद बिन वलीद को, पीछे अल्लाह के नबी 12000 का लश्कर लेकर आए। 12000 में 10,000 सहाबाए किराम थे, 2000 फतेह मक्का के दिन नए नए इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा थे, जो आजू बाजू खरियों से आकर 2000 नए नए इस्लाम में दाखिल, टोटल 12000। खालिद बिन वलीद के साथ गए सो 1000 का लश्कर, टोटल 13000 का लश्कर। अब मुसलमानों को एक कॉन्फिडेंस, 313 ग़ज़वा बदर में थे, दुश्मना के छक्के छुड़ा डाले हमें, आज 13000, 12000। आज को से भी राता भर को हाथा उठा उठा को दुआ करने की, अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत नहीं, आज हमें जाको कुचल डाल दिया उनको कहने का और कॉन्फिडेंस, भूल साहबा से गलती, एक और कॉन्फिडेंस उनके दिल में आ गया। वहां गए, आसमान में ऊपर से तीर बारिशों के बूंदों की तरह जब साहबा पर बरसना शुरू करे, सब भागना शुरू करे। अल्लाह के नबी खड़े होकर ऐलान करते, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना मोहम्मद, अना ला काज़िब। ऐ लोगो, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे, मैं सच्चा नबी हूँ, मैं झूठा नबी नहीं हूँ। सारे सहाबा पलट पड़े। उसके बाद हुनैन फतह हो गए। हुनैन की फतह कामरानी में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। अब जैसे ही हुनैन फतह हुआ, उसी सन 8 हिजरी में कबीले बनु हवाज़िन को शिकस्त देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1000 का लश्कर देकर
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताइफ को रवाना किए। कौन सा ताइफ है? जहां नबी को सबसे ज्यादा सताए, मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म करे, ऐसे ताइफ को गज़वाए ताइफ को रवाना करे। और बाकी के सिपाहियों को लेकर नबी पीछे से ताइफ पहुंचे, वहां किले को घेर लिए। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ के किले के बाहर खड़े होकर ताइफ वालों को ललकार के बोल रही है, किसी के माई का बेटा जो आए खालिद की तलवार का मुकाबला करे? है कोई तुम ताइफ वालों में जिगर गोशे वाला आए खालिद के सामने खड़े होकर जंग लड़े? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि खालिद बिन वलीद का सामना कर सके। चीख मार रहे हैं, पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं। आखिरकार ताइफ का एक आदमी किले के ऊपर से कहता है, अरे खालिद, तुम्हारी बहादुरी का सामना करने वाला पूरे ताइफ में कोई भी नहीं है। तुम्हारी मुकाबला करने वाला, तुम्हारी तलवार से का टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं। और ये सुन लो, हमको थोड़ा मौका दो, हम सोच समझकर इस्लाम ही कबूल करेंगे, हमको जबरदस्ती मत करो, ऐसा मुहासरा करके हमको मत रखो, हमको मौका दो। अगर आप यहां मुहासरा करके खड़े रहोगे तो हम इस्लाम नहीं लाने वाले, हमको मौका दो। अल्लाह के नबी ने इनकी इस तजवीज को कबूल किया और मुहासरा हटा लिया, ताइफ से वापस लौटाए। उसके बाद काफी बड़ी तादाद से ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद गज़वे तबूक के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपाहियों को लेकर गए। गज़वे तबूक में मुसलमानों की जंग तबूक वालों से नहीं हुई। तबूक में बड़े बड़े ईसाई हुक्मरान नबी के पास आकर चुपके चुपके से इस्लाम कबूल करने शुरू कर दिए। उनको मालूम था, नहीं माने गर्दन ही काट को रख डालती इन्हों, खैरियत इसी में चुपके जाना, कलमा पढ़ लेना, जान बचा लेना। आए ईसाई बड़े बड़े हुक्मरान नबी के पास बैत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ना शुरू करे। जंग नहीं लड़े, बोले कि हम जंग लड़ने की इस्तिताअत नहीं रखते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। बगैर जंग के खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें शामिल थे, बगैर जंग के तबूक से वापस लौटे। इसी जंग में हजरत काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबिया, हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबी पीछे रह गए थे, जिनको वापस लौटने के बाद 50 दिनों तक बाइकाट कर दिया गया था। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान अफरोज हुआ। खैर, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद को जैशुल उसरा, गज़वे जैशुल उसरा या गज़वे उसरा भी इसे कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा लश्कर देकर दौमतुल जुंदुल, क्या है नाम? दौमतुल जुंदुल का एक बड़ा हाकिम, उसका नाम था अकीदर, बड़ा हाकिम था उन्हें, अकीदर। अकीदर को पकड़ने या उसे मारने या उसे कैदी बना को नबी के सामने लाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद को रवाना किए। खालिद बिन वलीद सीधा गए जैशुल उसरा में, उसके खीमे में गए, उसके गर्दन में हाथ डाले, बाहर लाए, ऐसा मारे उसे, बोले मेरी तलवार से एक झटके में तेरी गर्दन उड़ा सकता हूं मैं, लेकिन मेरे नबी का हुक्म है तुझे कैद करके लेकर आने का। उसे मार 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 को कुप्पा कर को ले ले नबी के पास कैदी बना को लेकर आए। अल्लाह के नबी ये लीजिए अकीदर तुम्हारे हवाले। जैशुल उसरा, इतना बड़ा हुकूमत का रियासत, बगैर जंग के उनके सरदार को जिस अंदाज से खालिद बिन वलीद मारे, सारे लोगों के होश उड़ गए। एक आदमी हमारे सरदार को एक चूहे मारे सक मार रहा है, इतने लोग मिलकर हम ना चटनी कर को रख डालते रहे, जंग करना नहीं बा, इनके साथ डर गए और बगैर जंग के वो जैशुल उसरा फतह कर लिए। उसके बाद जंगे यमामा, जंगे यमामा एक ऐसी जंग इस्लाम में लड़ी गई। कहां है ये? मुल्के यमामा। मुल्के यमामा, यहां पर एक नालायक आदमी था जिसका नाम था मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ये मुल्के यमामा में अपने आप को नबूवत का दावा कर ले बैठा था। मैं इस नबी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी, मेरे पास वही आती, ऐसा झूठा नबूवत का दावा कर ले बैठा था। जैसे आज शकील बिन हनीफ नबूवत के फितने फैला ले को बैठा और बोलता मैं नबी, मैं महदी, कभी बोलता मैं ईसा, कभी बोलता मैं मेहदी,
कभी बोलता नबी, अरे हमारे नबी के ऊपर नबूवत का सिलसिला अल्लाह खत्म कर डाला। जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मुल्क शाम में आएंगे, कैसे आएंगे? दो फरिश्तों के कांधों पे हाथ रखते हुए मुल्क शाम में मीनारे शर्किया पर उतरेंगे। उनके बालों से पानी के खतरे टपक रहे होंगे और जहां पर वो उतरेंगे उनसे पहले हजरत महदी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहेंगे। महदी बोले तो कौन? नबी बोलते हैं मेरे नाम उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, महदी का नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहेगा, मेरी माँ का नाम उसकी माँ का नाम रहेगा, और वो एक आम आदमी जैसा रहेगा, मामूली आदमी जैसा रहेगा। अचानक अल्लाह ताला उस आदमी को हिदायत देगा। वो आदमी अचानक एक ऐसे जोश के साथ मुसलमानों के हाथों पर बैअत लेगा और दूर दूर से सियाह झंडे लेकर आने वाली यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुसलमानों की बैअत लेना शुरू करेगा। उसके बाद मुसलमानों की इमामत करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो देखेंगे कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की इमामत करा रहे। आगे बढ़ेंगे, चलो जी आप ईसा ही। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए थे तो नबी बनकर गए थे, जब वापस दुनिया में आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे, उम्मत मोहम्मदी बनकर आए। क्यों? इसलिए कि नबूवत का सिलसिला अल्लाह नबी पर खत्म कर दिया। उसके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला है भी नहीं, आता भी नहीं। अगर आए तो भी उम्मत मोहम्मदी बनकर आता। ये शकील बिन हनीफ हो, ये नालायक अपने आप को नबी होने का दावा करता, कभी बोलता मैच महदी, कभी बोलता मैच ईसा। अरे कैसा भाई, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। और इसके फितने में आने वाले गुजरात कते, केरला कते, कर्नाटक कते, कई इलाकों में फैल गए मर्दाने औरतें बोल रही कि हमारे हर दौर में एक अजीम सिपह सालार रहता, एक मुसलमानों का रहबर रहता, उसके हाथ में बैयत करना, नहीं बैयत करे तो फितना आता। कौन बोले, कहां है लिखकर? ये खैर वो टॉपिक अलग है, शकील बिन हनीफ का टॉपिक अलग है। एक नंबर का फितने खोर, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार। ये आज का नहीं, नबी के जमाने से ऐसे झूठे नबूवत के दावे कर ले आने वाले पैदा हुई। नबी के जमाने में एक दो जने थे, एक असवद अंसी नाम का आदमी, उन्हें भी नबूवत का दावा करे, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का झूठा मक्कार, उन्हें भी नबूवत का दावा करे। अब इन्हें मुल्क यमामा में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना दौरे खिलाफत आया तो सन 11 हिजरी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13,000 का लश्कर देकर हजरत खालिद बिन वलीद को मुल्क यमामा में इस झूठे नबी का सिर कुचलने के वास्ते मुल्क यमामा को भेजे। इन्हें कौन? मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, अपने आप को झूठे नबूवत का दावा करने वाला, पहले वहां पर 40,000 का लश्कर लेकर, उसका कबीला है कबीला रबिया। किसका? मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का जो कबीला है उस कबीले का नाम है कबीले रबिया। कबीले रबिया के 40,000 लोगों को लेकर मुल्क यमामा के मैदान में बैठा था मुसलमानों से जंग लड़ने के वास्ते। हजरत खालिद बिन वलीद गए, बड़ी एक तादाद लेकर 13,000 का लश्कर मुसलमानों का, 40,000 का लश्कर मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का गए। वहां जाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के सामने जो मैदान जंग में खड़े होकर ईमान का जज्बा उभारने वाली जो तकरीर करते थे, अल्लाह अकबर, जो तकरीर करते थे, उस तकरीर से मुसलमान ऐसे टूट पड़ते थे दुश्मनों पर, ऐसे टूट पड़ते थे, एक एक मुसलमान के सामने 4-4 काफिर नहीं टिकते थे। ये सिर्फ खालिद बिन वलीद की बात नहीं कर रहा हूं, हर मुसलमान की बात, हर मुसलमान की बात। एक एक मुसलमान के सामने 4-4 दुश्मन भी नहीं टिकते थे। अब खालिद बिन वलीद का कहना क्या? आखिरकार जंगे उहद में हिंदा नाम की एक औरत, कौन? अबू सुफियान की बीवी, फतेह मक्का के दिन ये इस्लाम कबूल करते हैं, दोनों मियां बीवी, हिंदा और अबू सुफियान, दोनों फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन सन 2 हिजरी, सन 3 हिजरी में जब ग़ज़वा उहद लड़ी गई, ग़ज़वा उहद में हिंदा एक हबशा के एक गुलाम को खरीद कर लाती है जो नेजा चलाने में बड़ा कमांडर, बड़ा जबरदस्त तीरंदाज, निशानाबाज था। उसे लाकर कहती है कि मेरे बाप के खातिल, मेरे बाप को मारने वाला हमजा को अगर तुम मार दोगे, उसका सीना चीर दोगे, तो तुमको मुंह मांगी मैं कीमत दूंगी और तुमको आजादी दिला दूंगी। वो लालच देकर लाती है और हकीकत में ग़ज़वा उहद में
ये वहशी कल्ब है, इनका नाम क्या है? वहशी कल्ब। ग़ज़वा उहद में अपने बड़े नेज़े से हजरत हमजा को दूर खड़े होकर भाला फेंक कर उनको शहीद कर देते। उसके बाद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश पर हिंदा आकर उनके कान, उनकी नाक, उनके होठ काटकर उनके जिस्म का मसला करती है, फिर सीना काटकर उनका जिगर निकालती है, कलीजा, फिर वो चाप कर निगलना चाहती है, निगला नहीं जाता, थूक देती है। ये सब वाक़या फतेह मक्का के दिन नबी के सामने इस्लाम कबूल करके हिंदा आती है तो कहती हैं कि हिंदा, तुम मेरी आंखों के सामने मत आओ, तुमको देखता हूं तो मेरा चाचा मुझे याद आता है, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हिंदा वहशी कल्ब को तैयार करती है हजरत हमजा को शहीद करने के लिए। यही वहशी कल्ब आगे चलकर इस्लाम कबूल करते हैं, और इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे यमामा में खालिद बिन वलीद की नियाबत में उन दुश्मनों के साथ लड़ने वालों में वहशी कल्ब भी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब सहाबी रसूल हैं। और वहां जाने के बाद अपने नेज़े से, जैसे उन्होंने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौरे जिहालत में जब इस्लाम कबूल नहीं किए थे, निशाना हजरत हमजा को शहीद कर दिए थे, उसी नेज़े से मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब जो झूठा नबूवत का दावा करने वाला था, अपने निशाने से किले के ऊपर खड़ा है मुसैलमा कज़्ज़ाब। वहशी कल्ब नीचे से निशाना रखकर मारते हैं, उसी नेज़े से उसके सीने को आर पार कर देते हैं। झूठा नबूवत का दावा करने वाला वहशी कल्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेज़े से शहीद मरकर कत्ल हो जाता है। और पूरे जंगे यमामा में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह कामरानी अता करता है। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक और ईरान, अभी जंगे यमामा लड़कर मक्का आए हैं, मदीना आए हैं, उसी सन 11 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही 13,000 का लश्कर देकर इराक और ईरान की जानिब भेजते हैं कि जाओ वहां इस्लाम का झंडा कायम करो, इस्लाम की हुकूमत कायम करो, इस्लाम का बोलबाला कायम करो। हजरत खालिद बिन वलीद वही सिपाहियों को लेकर आते आते रास्ते में अबला नाम का एक बहुत बड़ा मुकाम है, रास्ते में जाते जाते अबला शहर को फतह कर लेते हैं और आते हैं ईरान के हुज़ैर नामी मुकाम पर। यहां कौन था? यहां एक ईसाई दुश्मन था, इसका नाम था हुर्मुज। ये वो शख्स था जो अपने जुल्म ज्यादती के करिश्मे हिंदुस्तान में, उस जमाने में हिंदुस्तान पर बहुत जुल्म किया था। हुर्मुज रहता था ईरान में। हुर्मुज के जुल्म ज्यादती के तारीख के कारनामे हिंदुस्तान पर ज्यादा यह जुल्म किया था हुर्मुज, और इतना जालिम, इतना जाबिर ईरान में बैठा है, ईसाइयों का सरदार बना। जब ईसाइयों को पता चला तो शाह ईरान ने पता चला कि 13,000 का लश्कर लेकर हजरत खालिद बिन वलीद आए हैं इस्लाम के सिपाहियों को लेकर ईरान। अब हुर्मुज अगर मर जाएगा, हुर्मुज अगर खत्म हो जाएगा तो हमारी ईसाइयत खत्म होगी। 1 लाख का लश्कर भेजता है शाह ईरान हुर्मुज की मदद के लिए। 1 लाख का लश्कर। पहले तो उसके पास 40,000 का लश्कर है, ऊपर से आते हैं 1 लाख सिपाही, 1,40,000 इधर ईसाइयों के, मुसलमानों के सिर्फ 13,000। उनके कमांडर कौन? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद को मालूम था हुर्मुज कहां जुल्म कर रहा, कैसा जुल्म करता, सब मालूम था उसे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा अपना घोड़ा लेकर सारे लोगों के दरमियान से चीरते हुए, लश्कर को फांदते हुए सीधा हुर्मुज के खीमे के सामने आकर अपना घोड़ा रुकाते और हुर्मुज को आवाज देकर बाहर बुलाते। कहते हैं कि हम 13,000 काफी हैं तुम्हारे 1.5 लाख लश्कर को पराखचे उड़ाने के लिए। हम 13,000 काफी हैं तुम्हारे 1.5 लाख सिपाहियों का खून बहाने के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि हमारी वजह से इन सिपाहियों की जान जाए। मैं तेरे सामने एक ऑफर रखता हूं, तू ईसाइयों का कमांडर, मैं मुसलमानों का कमांडर, हम दोनों जंग करेंगे, हम दोनों फाइट करेंगे। जो जीता जीत उसकी, जो हार गया हार उसकी। कबूल है?
अब सारे सिपाहियों के सामने खालिद बिन वलीद ललकार रहे, ए नहीं बाबा मैं जंग नहीं लड़ता, बोल भी सकता नहीं उन्हें। तारीख में लिखा जाता मुसलमानों का कमांडर जंग के लिए उभारे तो भीगी बिल्ली सर का दबले के अंदर खीमे में भाग को गया, क्या करना। और ये ऐसा इंसान आज तक इसकी तलवार के सामने कौन बचा नहीं, इन्हें जिंदगी में कभी हारा नहीं, लड़ना नहीं लड़ना, क्या करना, मरता क्या ना करता, चुपके मुंह मुशलक आया, ओन दे लो सब लड़ेंगे। आने के बाद खालिद बिन वलीद उसके वो बैंड बजाए, वो दाल को कूटे, उसे उठा उठा पटक को, आखिरकार उसे नीचे गिरा को, सीने पर चढ़ को बैठ को, अपनी तलवार निकाल को उसकी गर्दन से उसका तन काट को, सिर जुदा कर को ईसाइयों के सामने पकड़े। है कोई माई का लाल खालिद की तलवार का मुकाबला कर सके? ये तुम्हारा हुर्मुस जो दुनिया भर में अपना रोब और दबदबा जमाने वाला, जुल्म ज्यादती के किस्से बयान करने वाला हुर्मुस की गर्दन मेरे हाथ में है, कोई माई का लाल। अब उसके बाद खालिद की तलवार का मुकाबला ये देखना था, चूहे भागे सर का भाग को चले गए ईसाइयां सब भी। हमारे सिपे सालार को एक मामूली मुल्ली काट को रख डाला ना पा, बेचारा ये हमने क्या नहीं करता, हो गया हमारी हालत, सब भाग गए बगैर जंग के ईरान इराक अल्लाह तबारक व तआला खालिद बिन वलीद के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, 2 साल टिक कर थे ईरान के अंदर, ईरान के बाद ईरान और इराक 2 साल तक उन सिपाहियों को लेकर वहां थे और पूरा ईरान दुश्मनों से पाक कर दिए, इस्लामी ममलकत का झंडा कायम कर दिए खालिद बिन वलीद 2 साल के अरसे में। उसके बाद जंगे यरमुक एक ऐसी जंग है जो रूम के खिलाफ मुसलमान लड़े। जंगे यरमुक में रूमियों ने 2,40,000 का लश्कर लेकर आए थे मुसलमानों को लड़ने के वास्ते। 2 लाख। इस्लाम की हिस्ट्री में जंगे यरमुक में जितने सिपाही मुसलमानों का टक्कर लेने आए, किसी जंग में इतने सिपाही नहीं आए। कितने थे उनके? 2,40,000 सिपाही। हजरत खालिद बिन वलीद के पास कितने हैं? ओनली 40,000 सिपाही। 40,000 सिपाही इधर, 2,40,000 सिपाही उधर। उसके बाद ऐसी वलवला अंगेज तकरीर कर ईमानी हरारत सहाबा में बेदार करके 1,25,000 ईसाइयों को उस जंग में मार दिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह कामरानी अता किया। उसके बाद अब मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों का यकीन, खालिद बिन वलीद के तराने हर कोई गा रहा, खालिद बिन वलीद है तो हक गया, दुश्मन के पप्पड़ाम बेल को रख डालती है, हमें दाले को चटनी कूट को रख डालती है। खालिद बिन वलीद है तो हक गया, हो गया, कौन भी टिक सकता नहीं, कोई माई का लाल जीत सकता नहीं। हमना खालिद है तो जंग जीत, खालिद है तो जंग जीत गई। ये लोगों के तराने होने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि लोग खालिद बिन वलीद का तराना गा रहे, नहीं, बिल्कुल गलत। उसके बाद दिमश्क की एक जंग थी ईसाइयों के खिलाफ। उस जंग के इन मौके पर हजरत उमर बिन खत्ताब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है ये? अशरे मुबश्शरा सहाबा में से एक है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मकतूब लिखकर भेजे, बोले खालिद को देना। दिमश्क के जंग लड़ने से पहले उधर ईसाई हैं, इधर मुसलमान हैं। मुसलमानों के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद हैं। मकतूब लेकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आते हैं। उस मकतूब में क्या है? उमर बिन खत्ताब का आर्डर है, आपको कमांडरी से निकाला जाता है, आपको इसी वक्त माजूल कर दिया जाता है और मुझे इस जंग का सिपह सालार बनाया जाता है। ये मेरा नहीं, खालिद हजरत उमर बिन खत्ताब का आर्डर है। अब ये देखना था, खालिद बिन वलीद अपनी तलवार लिए कमांडरी से हट गए। लोग देखो जी तुम्हें जंग लड़ रही ना, उमर को भड़का पड़ रहा, देखो जी कैसा उन्होंने जल रही, देखो जी कैसा तुमने कमांडरी से निकाले, देखो जी। बोलने वाले बोले। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या कहा? अगर मैं उनके अल्फाज देखो, अल्लाह अकबर, ईमान वालों के हिस्से कभी भी पढ़ना तुम्हारा ईमान ज्यादा हो जाता। खालिद बिन वलीद के वो अल्फाज, कैसा नाजुक मोड़ है, उनको मालूम ही नहीं क्या भी प्लान, फ्यूचर का क्या प्लान है, उनके माइंड में क्या आइडिया है, कुछ भी मालूम नहीं। खत आया, अमीरुल मोमिनीन का आर्डर, तुम्हें नहीं रहना, निकल जाना। निकल गए। जबान से कुछ भी बोल सकते थे, अल्लाह अकबर। ईमान है जिस सीने में, उनके जबान से ईमान निकलता। सीने में ईमान रहे तो जबान से ईमान निकलता, सीने में निफाक रहा तो मुनाफिकाना अल्फाज बाहर निकलती।
खालिद बिन वलीद ऐसे अजीम सिपह सालार, वो अपनी जबान से कहते हैं अगर मैं उमर के लिए लड़ता था तो यह जंग छोड़कर मैं चले जाऊंगा, अगर खालिद उमर के लिए लड़ता था तो यह जंग छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर यह खालिद अल्लाह के लिए लड़ता था तो अब क्या मरते दम तक लड़ेगा और अमीर मोमिनीन का हुक्म सर आंखों पर रखकर अमल करेगा। क्यों? इसलिए कि खालिद उमर के लिए नहीं लड़ता, खालिद तो अल्लाह के लिए लड़ता है। उसके बाद एक मामूली सिपाही बनकर उस जंग में लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमेशा की तरह उस जंग में भी फतह कामरानी अता किया। मदीना आए, उमर बिन खत्ताब ने खालिद बिन वलीद से कहा मेरी कोई आपसे अदावत नहीं, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, आप तो एक अजीम सिपह सालार, आप तो एक बेहतरीन सिपह सालार है, मुझे फख्र है आपके ऊपर, आप इस्लाम में आए, आपके जरिए अल्लाह ये खिदमत ले रहा, मुझे फख्र है। लेकिन मेरे भाई, लोगों के जबानों पर ये तराने हैं, लोगों के जबानों पर ये अल्फाज हैं कि खालिद रहेगा तो हम जंग जीत लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ये जंग अल्लाह अपने फजलो करम से हम ना जिता को दे रहा, खालिद की वजह से नहीं जीत रहे, ये जंगे अल्लाह के फजल से हम लोग जीत रहे हैं। खालिद तुम बताओ क्या तुम्हारी वजह से जीत रही या अल्लाह की फजल से जीत रहे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के फजल से जीत रहे। खालिद कोई हैसियत नहीं रखता, खालिद कोई माना नहीं रखता, अल्लाह की शान और शौकत के सामने खालिद की कोई हैसियत नहीं। खालिद रहेगा तब भी अल्लाह जंगे जिताएगा, खालिद सिपह सालार नहीं रहेगा, कमांडर नहीं रहेगा, एक मामूली सिपाही बनकर लड़ेगा तब भी अल्लाह अपने फजल से जिताएगा। कई दिनों तक वो एक जंग में नहीं, कई दिनों तक कई जंगों में उनको सिपह सालार से माजूल कर दिए थे उमर बिन खत्ताब, मुसलमानों को ये बताने के लिए कि ये जंगे खालिद की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह के फजल से हम लोग जीत रहे। मेरे भाइयों, कई साल तक खालिद बिन वलीद जिंदा थे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगे लड़े, 100 से ज्यादा जंगे लड़े, लेकिन खालिद बिन वलीद एक ऐसे सिपह सालार हैं 100 जंगों से ज्यादा लड़ने वाला सिपाही, एक जंग में भी उन्होंने हार का सामना नहीं किया, एक जंग भी नहीं हारे, सब के सब जीते। हर जंग में शहादत का शौक लेकर जाते थे खालिद बिन वलीद, लेकिन गाजी बनकर जीत कर लौटते थे। जब उनका इंतकाल का वक्त आया, बिस्तर पर उनकी रूह कब्ज हो रही थी, तो खालिद के अल्फाज हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों, जितने भी जंगों में वह जाता था, मेरे दिल में एक तमन्ना रहती थी कि अल्लाह मुझे शहादत दे, अल्लाह मुझे शहादत दे। लेकिन अब मैं अपने बिस्तर पर एक आम मौत मर रहा हूं, एक आम मौत में मर रहा हूं। खालिद बिन वलीद के बदन में एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो जख्मों के निशान से खाली ना हो, पूरा बदन नेजों के, तीरों के, भालों के, पूरे जख्मों से छलनी था खालिद बिन वलीद का बदन, पूरे बदन में जख्मों के निशान, लेकिन जख्म नहीं थे, भर गए थे, उनके जख्मों के निशानात थे बदन भरकर। वो कहते हैं मैं इतने जंगों में शरीक हुआ शहादत का शौक लेकर, लेकिन अल्लाह ताला मुझे किसी जंग में शहादत नहीं नसीब किया। मेरे बिस्तर पर अल्लाह के नबी की एक हदीस है इब्ने माजा की, जो इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह से ये उम्मीद लगाकर दुआ करेगा, अल्लाह मुझे मरना तो है, यकीनी है, जब भी मरूं अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, अगर ये दुआ कोई करेगा, शहादत की मौत कहते हैं 9 किस्म की मौत शहादत के हैं। पानी में डूबकर मरने वाला तौहीद परस्त, शहादत की मौत, ताउन की बीमारी में मरने वाला, शहादत की मौत, छत के नीचे दबकर मरने वाला, अचानक घर गिर गया, छत गिर गया, मरने वाला, शहादत की मौत, आग में जलकर मरने वाला, शहादत की मौत, कोई दुश्मन आ गया हमला करने के वास्ते, बीवी बच्चों की इज्जत माल बचाने के वास्ते लड़ते लड़ते मर गए, शहादत की मौत। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई औरत डिलीवरी के दर्द में मरती है तो भी शहादत की मौत। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 9 किस्म के मौत है शहादत के, जो अल्लाह के नबी गिनाए। इन 9 किस्म के मौतों को छोड़कर बाज रिवायत में 6 किस्म के मौत, बाज में 7, खैर उसमें तेदाद कम सरस है। अल्लाह के नबी कहते हैं इन तमाम मौतों से हटकर अगर कोई कहे अल्लाह मुझे जब भी मरना है मैं शहादत की मौत मुझे दे, कलमे वाली मौत दे, खातिमा बिल खैर दे, अगर ये दुआ करे, चाहे वो इंसान पानी में डूबकर ना सही, पेट के दर्द में ना सही,
छत के नीचे दबकर ना सही, चोर से लड़ते हुए ना सही, ताउन की बीमारी में ना सही, डिलीवरी के दर्द में ना सही, मैदान जंग में गर्दन कटा के ना सही, अपने बिस्तर पर क्यों ना ठंडी मौत मरे, उसकी दुआ उसकी तमन्ना के मुताबिक उसकी बिस्तर की मौत भी अल्लाह उसके लिए शहादत की मौत बना देगा। उसकी बिस्तर की ठंडी मौत भी उसके लिए शहादत के नसीब, क्योंकि वो दुआ किया था, अल्लाह उसकी दुआ कबूल किया था, बिस्तर की मौत भी उसके लिए शहादत अल्लाह लिख देगा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने बिस्तर पर इंतकाल होते हैं। मुअर्रिख लिखने वाले लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद कई को शहीद नहीं हुए, कई को शहीद नहीं हुए, किसी जंग में उन्होंने कई को मारे नहीं गए, 100 से ज्यादा जंगें लड़े, एक जंग में भी उन्होंने नहीं हारे, हर जंग में जीते, क्यों उनको शहीद नहीं किया गया? तो उसके जवाब में मुहद्दिसीन लिखते हैं वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे, किसी माई के लाल की यह मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को हरा सके, किसी शख्स की यह मजाल नहीं कि रब की तलवार को हरा सके। अल्लाह की तलवार जब बुलंद होती तो अच्छे अच्छों के गर्दने उछल जाया करते थे, गर्दनों से, धड़ों से। वो जुरत, वो शुजात, वो बहादुरी, वो वलवला, वो ईमानी हरारत थी इस खालिद बिन वलीद के अंदर, इसीलिए वो किसी जंग में नहीं हारे, उनकी तलवार को किसी ने शहादत नहीं दिया। एक ईसाई बादशाह खालिद बिन वलीद की तलवार मंगाता, वो जरा तलवार देख भेजो भाई हमें, देखती वो कोसी तो भी तलवार, कहां तो भी चांदे फतेह, कहां तो भी चांदे मुल्क फतेह, कौन कहते हैं? खालिद बिन वलीद। कहां तो भी चांदे, या तो खिलाफत या तो मुल्क फतेह, चुपके सरेंडर कर डालना, नहीं कहता उठा मुल्क दे डालना, इस्लाम का झंडा गाड़ते सोच गाड़ते। वो देखना चाहता हूं भाई, कोसी तो भी तलवार लेको आदमी हमको इतने डर पैदा कर डाली तुम्हें, अल्लाह की तलवार कहते, जरा देख भेजो। खालिद बिन वलीद अपनी तलवार देख भेजे ईसाई बादशाह के मुल्क शाम का, उन्हें देखता वो तलवार बिल्कुल सीधी भी नहीं, जरा टेढ़ी मेढ़ी है, वहां कच्चा पड़ गई, धागा पड़ गई, वो धारी धार भी नहीं, घस घस को धार पैदा करती ना, वो धारी धार मुंडी मुंडी है, कहां मिले वहां कच्चा कच्चा पड़ गई। देखो बोले क्या भाई मजाक कर रही क्या, ऐसी तलवार बिंगी टिंगी मुंडी मुंडी ऐसे वैसे कच्चा पड़े सो ये तलवार ले को इतने मुल्क का फतह करेंगे खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का जवाब क्या था मालूम? खालिद बिन वलीद बोले मैं अपनी तलवार तेरे सामने भेजा हूं, लेकिन तलवार चलाने वाला हाथ तेरे सामने नहीं भेजा। कमाल तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाली हाथ का। मैंने ये हाथ तेरे सामने नहीं भेजा, वो तलवार भेजा है। ऐसे कई तलवारें टूट चुकी है मेरे हाथ में। मेरे भाइयों, खालिद बिन वलीद की जब सीरत हम पढ़ते हैं, यकीनन हमारे सीने में ईमान की हरारत ताजा होती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सहाबा जैसा ईमान अपने सीने में बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके जैसे नमाज की पाबंदी, उनके जैसे ईमान का वलवला, उनके जैसे जज्बे कुर्बानी अल्लाह हमारे दिलों में बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।